مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کا جموں کشمیر کا 2 روزہ دورہ جاری۔ جموں میں آج کئی تقریبات میں لیا حصہ۔ تعمیر و ترقی پر وزیر اعظم یوٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ برابر رابطے میں ہے اور دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے عوام کی تمام خواہشات ہوئی پوری۔ جی ایس ٹی کی شرحوں میں رعایت کا اعلان۔ پی ایم ڈی پی کے کئی پروجیکٹوں کا کیا اعلان۔ جموں میں آج کئی تقریبات میں کی تقریر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے فنانس منسٹر کی موجودگی میں جموں کشمیر کی تعمیر و ترقی کا خاکہ کیا پیش۔ کہا جو کچھ گزشتہ کئی برسوں میں نہیں ہوا وہ جموں کشمیر میں پرائم منسٹر کی ہدایت پر تعمیراتی کام مکمل ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ پہنچے سری نگر کے دورے پر۔ سی اے ٹی ٹریبیونل سری نگر بینچ کا کیا افتتاح۔ سری نگر اور کارگل جموں اور لداخ کے ساتھ مشترکہ طور پر بینچ سے ہوگا کام۔ پی ایم کی نظر میں جموں کشمیر کے تعمیراتی پروجیکٹ ہوں گے مکمل۔ ملازمین خصوصی العدلیہ اور سی اے ٹی ٹریبیونل کے ملازمین سے تلقین کی کہ اب آپ کے حوالے کام ہے اور کام کو آگے بڑھانا ہے۔ پی ڈی ایل ٹی ڈی ایل محکمہ بجلی میں تعینات عارضی ملازمین کا جنوب و شمال میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ پروگرام میں بالوقت کوئی تبدیلی نہیں۔ مشکل اور کٹھن حالات میں محکمہ بجلی نے اپنی جانیں تک گنوائی۔ رد عمل میں سرکار نے عارضی ملازمین کے درد کو نہ سمجھا۔ محکمہ بجلی کی ناقص اور غیر ضروری کارکردگی کی بنیاد پر عوام نے کیا سڑکوں کا رخ۔ تاریں اور ترسیلی لائنیں نہ بدلی گئی۔ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر کیا احتجاج۔ محکمہ بجلی کے پی ڈی ایل ٹی ڈی ایل کر رہے ہیں احتجاج۔ عوام مشکل دور میں سخت ترین سردیوں میں بجلی کی مداخلت سے ہے عوام پریشان۔ السلام علیکم ناظرین، سپہر کے 4:05 ہوا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے سری نگر اسٹوڈیو سے اپنے میزبان تجمل کا سلام پہنچے۔ جموں کشمیر ملک بھر اور دنیا بھر کے چند اہم واقعات پر ہماری نظر ہوگی، لیکن شروعات کرتے ہیں مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کے جموں کشمیر دورے کے حوالے سے۔ ناظرین، مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن پہلے کشمیر اس کے بعد جموں پہنچ گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ترقیاتی فنڈز اور پروجیکٹ فراہم کیے گئے ان سے ان کی تمام خواہشات پوری ہوئی ہے۔ رمن نے کشمیر کی کچھ مصنوعات کے لیے جی ایس ٹی کی شرحوں میں رعایت دینے کا بھی اعلان کیا۔ سری نگر کے بعد آج جموں میں کئی ایک تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے نرملا سیتارمن کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر کے وسائل کے لوگوں کی آسودہ حالی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ دفعہ 370 کی آڑ میں اور منسوخی کے بعد کشمیر کے حالات سدھر گئے ہیں۔ رمن کا کہنا تھا کہ گزشتہ 70 برسوں سے جموں کشمیر میں ترقی کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، لیکن دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد ترقی کے سارے دروازے کھل گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دفعہ 370 جموں کشمیر کی ترقی اور تعمیر میں ایک رکاوٹ تھی اور اس دفعے کو منسوخ کرنے سے یہاں ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ سیتارمن نے کہا کہ وادی میں موجود امکانات اور صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وادی کشمیر میں صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں، لیکن سابق حکومتوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ آج جموں میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بات چیت کی۔ Development and change in every aspect, and I can see some of the specific programs which the Lieutenant Governor has designed have gone in favor of health and education. World Bank or multilateral funding are all now being pulled through an agency which takes care of
economic revival of J&K, and that is also making a difference. And that is going to help in education, which means it will have immediate collateral benefits for families because they can access better education, they can access better health, and with that, the soft power of the state gets strengthened. So I would think it is important for two-way participation, good schemes from the government, good delivery from the government, and good participation from the people are all equally required. From my side, I will ensure that, I was mentioning to the Lieutenant Governor, I will ensure that more bank activities take place in J&K. Banks which have more liquidity to come out and extend credit for the people so that they are helped in the process of setting up their businesses will happen. I'll ensure more of the public sector banks come here. I would like to see greater presence of banks in all the... इस मौके पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के हवाले से बातचीत की। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के तामीर और तरक्की के लिए कहा कि जब से उन्होंने अपना ये चार्ज संभाला, जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्ट ज़ेर तामीर हैं, कुछ मुकम्मल होने जा रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्टों को अवाम के नाम वक्फ किया गया है। उन्होंने मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण को उनके सपोर्ट करने पर और वज़ीर आज़म के सपोर्ट करने पर जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादात को बेहतर करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में भी विस्तृत क्रेडिट की कवायद एक स्थिर अर्थव्यवस्था और सतत विकास की आधारशिला होगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि 2019 के बाद लागू की गई आर्थिक सामाजिक नीतियों का ये परिणाम है कि सामान्य आदमी के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम तेज गति से हो रहा है। पिछले साल सिर्फ जम्मू संभाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2402 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया और मैं कहना चाहता हूं कि जब से ये योजना शुरू हुई है, शायद पूरे जम्मू कश्मीर में भी इतनी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नहीं बनती थी जितना केवल जम्मू संभाग में बनी है। अगर 2019 के बाद से अक्टूबर 2021 के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो अकेले जम्मू संभाग में 3885 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई। 455 करोड़ रुपए की लागत से 109 परियोजनाएं जम्मू संभाग में पूरी की गई हैं, जिसमें 14 बड़े ब्रिज भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य योजनाओं में भी 9 ब्रिज हमने कंप्लीट किए हैं। कल भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी यहां आ रहे हैं और जम्मू संभाग के लिए लगभग 12,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। सालों से जो लोग उपेक्षित महसूस करते थे, दूर दराज के इलाकों में रहते थे, आवागमन के साधन नहीं थे, वो भी अब आत्मसम्मान से रह सकेंगे और उनके लिए भी आवागमन का साधन अच्छे ढंग से उपलब्ध हो, इसकी कोशिश प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रही है। पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन का जितना जबरदस्त फर्क जम्मू कश्मीर में था, मैं समझता हूं शायद देश। वजीर मामलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी श्रीनगर के दौरे पर आज पहुंच गए। इस दौरान मरकजी वजीर मामलिकत के श्रीनगर दौरे के दौरान सीएटी ट्रिब्यूनल श्रीनगर बेंच का भी इफ्ताह किया गया। श्रीनगर में यह बेंच जो है यह कारगिल के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा और जम्मू में दूसरे बेंच के खुलने के बाद वो लद्दाख के लोगों के साथ राब्ता रखेगा और प्राइम मिनिस्टर की नजर में जम्मू कश्मीर के हवाले से कई और इस तरह के प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब मुलाजमीन को, जो ट्रिब्यूनल में मुलाजमीन है, अब ये सारा मामला तामीरात और फैसिलिटी पहुंचाने के बाद मुलाजमीन को अपने मामला जो हैं और अपने फराइज जो है तनदेही से अंजाम देने होंगे। इस मौके पर ट्रिब्यूनल के सीनियर अफसरान के हमरा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर भी मौजूद रहे। Kashmir is the only union territory or state in the entire country where we are going to have 2 benches of CAT. So you would recall that there are a number of states and number of union territories in the country. They do not even have a single bench. And prior to this, we had a bench in Chandigarh, Pradesh, Punjab, etc. But soon after it turned into a union territory, the number of employees increased
And as Prime Minister has always been reiterating, maximum governance, minimum government. And maximum governance, minimum government, in other words, could be translated only if we could facilitate the working of the employees, to give them an atmosphere of work which is devoid of intimidation, devoid of distractions. And therefore, to facilitate easy retrieval of disputes, it was decided to be a bench separately for Jammu and Kashmir. Once the bench was in the summer last year, there was also, and now the Srinagar bench is going to also cater to the Kargil district of, whereas Jammu bench will also cater to the Leh district of Ladakh. And I am sure, and as you rightly mentioned, this is part of the DOPT reforms which have been introduced by Prime Minister Modi. The other ones which have come into being in the last 2 years after it turned into union territory is the abolition of interviews to provide a level playing field to the young aspirants. We have also set up a civil services examination center at Leh, which is the first of its kind. We have also introduced the Prevention of Corruption Act 1988, amended in 2018, which was not. नाज़रीन, और अब स्पेशल रिपोर्ट में स्पेशल बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं और गुज़श्ता से पैबस्ता ये तजुर्बा हमें हासिल है कि नवंबर 10 के आसपास के बाद सर्दियां शुरू होती है और अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक ये सर्दियां बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ रहती है। लेकिन इसी बीच में आज आपको 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। पहली तस्वीर है श्रीनगर में PDL TDL एहतजाजी मुलाजमीन और अपनी बुनियादी मांग को लेकर श्रीनगर के बेमना इलाके में अपना एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने कहा उन्होंने कोई भी कमजोरी अपनी तरफ से नहीं दिखाई और मुश्किल तरीन हालात में उन्होंने महकमा बिजली की आन बान और शान का खास ख्याल रखा। और जैन के PDL TDL एसोसिएशन के बैनर तले आज मुलाजमीन ने अपना एहतजाज दर्ज किया। इंसाफ न होगा, अंधेरा होगा। और ये नारे जो थे ये प्ले कार्ड्स पर और बैनर्स पर दर्ज किए गए थे। ऑर्डर इजरा करने के लिए LG इंतजामिया पर जोर दिया गया। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में PDL TDL मुलाजमीन की तरफ से बेमना के बाद शोपियान में भी इसी तरह की तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। शोपियान में भी वहां के PDL TDL मुलाजिम ने अपना एहतजाज दर्ज किया। हालांकि 72 घंटों तक इस अलामती हड़ताल और एहतजाज में महकमे के मुख्तलिफ अंजुमनों का इन्हें इश्तराक हासिल है। गुज़श्ता कई बरसों से इनकी मांगें जो हैं फाइलें दूल चाट रही हैं और चीफ सेक्रेटरी से लेकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी PDD तक और उसके बाद इनके हुक्मनामे जो हैं मुस्तकिली के अभी तक सामने नहीं आए गए। शोपियान के साथ साथ बारामुल्ला में भी आज PDL TDL के मुलाजमीन ने अपना एक रोज़ा एहतजाज शुरू किया। मुलाजमीन की मांग है कि दूसरे डिपार्टमेंट के तर्ज पर उनका भी DPC मुकम्मल किया जाए, दूसरे महकमों के तर्ज पर उनके मुस्तकिली के अहकाम जो हैं वो सादिर किए जाएं ताकि मुश्किल और कठिन हालात में उन्होंने अपनी जानें तक गंवा दी। बेशतर PDL TDL मुलाजमीन में से कई एक ने पावर के झटके पाए जिसके बाद वो उम्र भर के लिए स्पेशली एबल कैटेगरी में शामिल हो गए और वो अब नाने मोहताज भी हो गए। इसी बीच में मुलाजमीन ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी बात को अब संजीदा तरीके से न सुना तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरकार पर आयद होगी। मुलाजमीन अंजुमनों के अहदेदारों को सुनते हैं, उसके बाद इन मुलाजमीन के बरक्स जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर वादी में गुरेज में टंगडार में बिजली का नामो निशान नहीं। कितना बेहतर होता ये मुलाजमीन उस तरफ भी ध्यान देते और अपने इनफरादी और इज्तिमाई मसाइल की तरफ भी ध्यान देते। 2019 से हम अपने रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स मांग रहे हैं, NOKs की सैलरी मांग रहे हैं, सबमिशन ऑफ फाइल्स बोल रहे हैं, रिलैक्सेशन केसेस के रिलेटेड बोल रहे हैं, कोई काम हो ही नहीं रहा है। यानी कि हमारा जो डिपार्टमेंट है शायद हमको भूल चुका है। लेकिन जैसे कि आम तौर पे उर्फ आम में भी कहा जाता है PDD की जो कमर है उसकी डेली वेजर्स है, PDL TDL वर्करान है। अगर हम लोग काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएं तो ये सिस्टम पूरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम वो नहीं चाहते हैं कि हमारा सिस्टम डाउन हो जाए। इसीलिए हम अपनी गवर्नमेंट को, हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहते हैं कि हमको मजबूर ना करें ऐसी हड़ताल या ऐसी स्ट्राइक लेने पे जिससे हमारा सिस्टम भी डाउन हो जाए। नाज़रीन, ये एक तरफ की कहानी है कि PDL TDL मुलाजमीन के अपने मसाइल, मुतालबात, मुश्किलात अवामी सरकार तक उम्मीद करते हैं पहुँच नहीं चुके क्योंकि अवामी सरकार की गैर मौजूदगी में UT एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त LG इंतजामिया है और मुतल्लिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर अफसरान तक आवाज़ पहुँच चुकी है। जरा दूसरी तस्वीर कुपवाड़ा शुमाली कश्मीर से चलाएगा जहाँ पर खवातीन
और उनके बच्चे साथ में आज एहतजाज उन्होंने किया। एहतजाज किस बात का? एक तरफ मुलाजमीन अपने मसाइल को लेकर एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली का नामो निशान नहीं। हाँ जी, शुमाली कश्मीर, जनूबी कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर सिटी और कस्बों और शहर गाँव में बिजली का नामो निशान नहीं। मिटर्ड इलाकों में आपको बिजली बिल जो है वो आपको बराबर फराहम हुआ करती है। आपकी बिजली बिल जो है वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ई बिलिंग का मामला भी है और पेपर बिलिंग भी आप तक पहुंची है। बिल बराबर आती है लेकिन 3 घंटे बिजली चली जाती है, 10 घंटे के लिए दोबारा दीदार नसीब होते हैं, दोबारा 3 घंटों के लिए बिजली चली जाती है। खवातीन को सुनते हैं। उसके बाद कुंजर टंगमर्ग से तस्वीरें आती है जहां पर पोल और तारसील लाइनों को बदलने का ख्वाब अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। मसला यह कि रतस ज्यादा से ज्यादा 500 बिल बर असल पे नो डिपार्ट इम्पैक्ट लग 3 रतस बिल इन 3 सास रपी लग बिल इन क्योंकि हेको यूत फीस भरित कि गवर्नमेंटस अपील करान इस बिल सू हेको भरित। अगर अम अलावा बिल यी हेको पावर जलित कि हेकन तार थ्रोप तुलित हेको इनकम तीसा कि मे खानदार गाड़ी चलावान यह दह जाना रपस 300 या 400। नाज़रीन, बिजली किस वक्त आएगी, किस वक्त जाएगी, अभी इसका कोई कटलमेंट शेड्यूल भी हमारे सामने नहीं रहा। लेकिन इसी बीच में और तस्वीरें चलाएगा, जरा कुंजर टंगमर्ग की तस्वीरें दिखाएगा। महकमे के खिलाफ आज अवामी एहतजाज सड़कों पर उतर आएगा क्योंकि इस मोहल्ले में गुज़श्ता से पैवस्ता यहाँ पर भी बिजली बिलें लगातार आती रही, चाहे वो आपकी ई बिलिंग हो या आपका पेपर बिल हो, ये आता रहा। हजारों की तादाद में आपने काउंट पैसे भी किए, लेकिन उसके बाद बिजली नहीं। तरसीली लाइनों को देखिएगा, ये खतरनाक अमल साबित हो सकता है। किसी गरीब का आशियाना वहां पर है, उसके ऊपर से आप तरसीली लाइनों को टहनियों के सहारे चलाने की कोशिश करते हैं। महकमा बिजली खुद अपाहिज होकर नजर आ रहा है, तो बिजली पहुंचाना तो दूर की बात है। मकामी लोगों ने कहा मुकम्मल तौर पर CDF भी आया, मुकम्मल तौर पर MP फंड, MP लैड भी आया, DDC मेंबरान के लिए भी पैसा आया, 5 सरपंचों के लिए पैसा आया, लेकिन जहां मर्जी है उस हिसाब से काम चलाया। कितना बेहतर होता है इस इलाके में तरसीली लाइनों की मरम्मत के लिए और बिजली पोल या खंभों को तब्दील करने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाती, ताकि हम भी किसी वक्त कहते कि जम्मू कश्मीर के कुंजर के टंगमर्ग खूबसूरत इलाके में जो टूरिस्ट सिटी का खिताब हासिल किया इस इलाके ने, लेकिन इलाके में तरसीली लाइनों की हालत पर मकामी लोगों ने जबरदस्त तशवीश का इजहार किया। मैं निसार अहमद शाह रोजान ग्रिड स्टेशन पति गंजपोरा न्यू कॉलोनी वटमुरा लेखान जनाब मोहतरम 2000 मज अनमत पोल 6 तम सात मुल पन्न पोसन बेन तार तत पे वुक तान गई 21 वरी गई जनाब। तुम वो पान तुम वो तो यप मौका तुम वो सन हालात क्या बट अफसूस यह कत गई वारिया लटि 20 वरी वत पकान अत महकमस, मगर बदकिस्मती सद तहकीकत कर रोजान तक गंजीपोरा माल युकन ग्रिड स्टेशन सत वन वटमोरा तो गई पतिम 5-10 वरी ये बसान अड़न गई 15 वरी 20 वरी कह लग भग 20-25 गर ये बसन द्रामत नई गो वुक तक प्रारान ये नसन बिजली पोलन दिवान पोल वोल वन कह गई वारिया लट टंगमर्ग गई स्टडस गई या गई बारामूला गई, मगर AWS गई वारिया बशीर अहमद तक वनस तम ओत्र वाद दोपन बह दिमो तुम पोल इंशाअल्लाह ताला पोल 20 दिमो तुम बह, अगर 20-15 दिमो ऐश कर तुम करो बह इंशाअल्लाह ताला राह अमी नश, मगर वुक तक गई लग भग 5 रेत सह पोल दिवान न तार दिवान न दिवान अ कह डिपार्टमेंट ये दिवान मेहरबानी गुल गंडिस कर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के सहाफत में गुज़श्ता 1 बरस से ज्यादा बेहतर नहीं रहा। कठिन हालात, मुश्किल मामलात को लेकर सहाफत करना जम्मू कश्मीर मुल्क भर कोरोना वायरस के बीचों बीच में बड़ा खतरनाक अमल भी था। लेकिन गुज़श्ता 1 साल के दौरान अब सहाफ़ियों के साथ अचानक कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक का सिलसिला भी काफी तेज होता गया। श्रीनगर के प्रेस क्लब में आज सहाफ़ियों के अंजुमनों की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, खून के अतिया में। इस मौके पर सहाफ़ियों ने खून का अतिया पेश किया। जम्मू कश्मीर के माकूल मुनासिब मामलात को देखते हुए
शाहिद मसूद बुखारी, जावेद अहमद, मुदस्सिर अली और दीगर सहाफ़ियों के हक में श्रीनगर के प्रेस क्लब में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मरहूम सहाफ़ियों के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया। उनके हक में खुसूसी तवज्जो देने का सरकार पे जोर दिया गया। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ियों ने कहा कि मुश्किल और कठिन हालात में और ये ताज़ियती मजलिस और कुछ मिनट की खामोशी थी जो हाल दिनों शाहिद मसूद बुखारी, मुदस्सिर अली, जावेद अहमद और कई सहाफ़ी जो हैं, साहिल मकबूल भी थे, डॉक्टर शुजात बुखारी थे और कई सहाफ़ी थे जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी और ड्यूटी के दौरान अपने फ़राइज़ अंजाम देने के दौरान। और इस मौके पर सीनियर सहाफ़ियों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को और इनफरादी तौर, इज्तिमाई तौर पर बाकी सेक्शंस को भी, सोसाइटी के बाकी सेक्शंस को भी इस बात की तरफ इशारा देना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, रेडियो या आप डिजिटल मीडिया के साथ हैं, सोशल मीडिया के साथ हैं, स्ट्रेस बहुत है, थकावट बहुत है, मामलात बहुत हैं और यही वजह है कि अब डॉक्टरों का चेकअप प्रेस क्लब श्रीनगर में अब सहाफ़ियों के लिए हफ्ते में एक बार होना लाजमी है, जबकि इक़्तिसादी हालत को और बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं मालिकान इदारे जो हैं उन्हें इस बात की तरफ और ज़्यादा गौर करना होगा। जी ज़ाहिर है कई बरसों से ऐसा देखने में आया, न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि आम लोग भी हमने देखा कि बहुत कम उम्र में, यंग एज में लोग अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इस पे काफ़ी सर्वेज भी हुए और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनका भी कंसर्न था। तो ज़ाहिर है सहाफ़ी भी इसी समाज का हिस्सा है, इसी माहौल में पलता बढ़ता है, काम करता है, तो इन हालात का सहाफ़ी पे ज़्यादा असर पड़ता है और वो जहनी तौर पे ज़्यादा तनाव का शिकार हो सकता है। इसमें एक सर्वे भी आया मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स का, जो उन्होंने यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ साइंसेज के साथ मुश्तरका तौर पे किया। उसमें पाया गया कि 45% आबादी जो है वो जहनी तनाव का शिकार है। ज़ाहिर है सहाफ़ी इससे जो है मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये सहाफ़ियों ने इस बार सोचा कि अपने साथियों को याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है कि खून के अतिये का एक कैंप लगाया जाए, ताकि जो जिंदा सहाफ़ी हैं, जो पसमानदगान हैं उन सहाफ़ियों के जो इंतकाल कर गए हैं, वो उनके अरवाह को, उनकी रूहों को जो है सुकून बख्शने के लिए। BBC के नामानिगार रियाज मसरूर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। श्रीनगर के प्रेस क्लब में गुज़श्ता कई एक बरसों से सहाफ़ियों के साथ लगातार जो हार्ट अटैक्स के मामलात आते रहे, जिसमें काफ़ी नौजवान सहाफ़ियों को हमने खोया। इसके बाद एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया और सहाफ़ी बरादरी ने इस मौके पर अहल खाना के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को आज एक बार फिर पुलिस इंतजामिया ने अपने घर के अंदर बंद रखा। उनका मुतालबा था कि वो हैदरपुरा में डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ अहमद भट्ट के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार करने वाले थे। ताहम तस्वीरों में उन्हें पाया गया कि उन्होंने खुद ट्वीट करके और गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को भी बताया कि वो चाहती थी कि हैदरपुरा इनकाउंटर में फैमिलीज़ के साथ वो उनके साथ में वहाँ पर खड़ी रहें, उनके साथ हमदर्दी का इजहार करे, ताज़ियत पुरसी करे, लेकिन इंतज़ामिया ने आज वहाँ पर बंकर, मोबाइल बंकर खड़ा करके महबूबा मुफ्ती के गृहगाह पर आज मुकम्मल तौर पर उसे मुकफ़ल किया और उन्हें ताज़ियत पुरसी में जाने की इजाज़त नहीं मिली। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब खान साहब बडगाम के कारकुनों का आज एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में हैदरपुरा इनकाउंटर में 2 आम शहरियों की हिलाकत और तीसरे की डेड बॉडी को वापस करने का मुतालबा दोहराया गया। इस मौके पर मुकर्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल खड़ी है और अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात जन्म लेने से ये बात साबित होती है कि जम्मू कश्मीर में आम शहरी और मिलिटेंटों को मारने में कोई फ़र्क वाज़िह तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कोई भी वादा पूरा नहीं होता है, एक वादा भी पूरा नहीं होता है। देखो इतनी बाहर से मंत्री आ गए, मरकजी मंत्री मेरे ख्याल में 40 से ज्यादा आ गए, उनका कुछ रोल निकला यहाँ पर? कोई फायदा हुआ? क्या किया उन्होंने? जहां जहां प्रोजेक्ट चल रहे थे वहां वो गए और नई इनाग्रेशन की और कोई पर्पस नहीं निकला। पहलगाम गए घूमने, गुलमर्ग गए, दौलतपथरी गए, मगर कोई मकसद उसका नहीं निकला। अगर वो बोलते हैं कि दफा 370 हटाने से यहाँ बड़ी इंप्रूवमेंट हो गई, मगर हुई क्या? वो तो बताइए ना जरा, क्या हुई?
नाज़रीन, करना टंगडार की ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि गुज़श्ता कई दिनों से यहाँ पर आग की होलनाक वारदात में जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 34 में गुज़श्ता 2 रोज़ से जारी आग की वजह से यहाँ दरख्तों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। आग के शोले इस कदर बहुत ज़्यादा थे कि महकमा का अमला भी आग बुझाने की इस कार्रवाई में नाकाम हो गया। ताज़ा तस्वीरें आप तक गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क पर करना टंगडार जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 34 से गुज़श्ता 2 दिनों से जारी आग की वजह से काफ़ी सरसब्ज़ दरख्त जो है वो आग राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। मकामी लोगों का मुतालबा है कि फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज और दीगर अमला अगर वक्त पे पहुंच जाता तो शायद इस तरह का नुकसान नहीं होता। ताहम घने जंगलात, दूर दराज इलाकों में यहाँ तक कोई भी अमला पहुंचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मकामी लोगों ने आग बुझाने की कार्रवाई अज खुद शुरू की है। नाज़रीन, जाते जाते यह खबर कि 12वीं जमात के तुलबा के इम्तिहानात जारी हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आने से बच्चे जहनी कोफत के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से फौरी मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक का शुमारा मुकम्मल हुआ। ठीक 6 बजे ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान